Hello, good morning, everyone. So far, only 17 students have joined the room. So I would like to wait two or three more minutes. By the time, if you have any questions or any doubts from the previous class or the discussion we held on compression in last class, please ask your questions now. If you have any question from the previous discussion or anything else, please let me know. कोई क्वेश्चन नहीं है? ठीक है, then we'll start. 22 students have joined, so let us start the class now. So the basic discussion on the compression and the different definitions of the compressor has been covered already. So now I will start the analysis of the compression process for natural gas. So we will see here how to determine the air compressor and temperature before and after compression process. So you will see when we talk about the compression, so there will be no only one process. There will be number of processes, and this compressor is always used in a cycle. So in this cycle you may have compressor where you will provide compression work, then you may have a pump, then from the pump you are sending this gas to somewhere, from this it is going to somewhere, then it is again coming into the compression. So like this there will be cycle, and this compression process will be determined for this cycle. So suppose this is turbine. What will happen? We have this WT from the turbine. Turbine actually gives the work and compression takes the work. So that net work will be WT minus WC. So it becomes very important to determine this compression work, because this decides how much net work you can obtain from this cycle. That will be actually and then to determine WC we will require the determination of pressure and temperature. Okay, at each point you may determine, like I have explained you the cycle now. So at each component or at the inlet of each component in the cycle, the pressure and temperature will be different, and even after passing through the compressor or turbine, the pressure and temperature will be subjected to change. So we can determine the changes in pressure and temperature after each component in the cycle. So that will be discussed in the first, and how to determine for different compression processes. Then we will see we will calculate indicated work or power from the compressor. Okay, so the net work which compressor actually we will get from the cycle when we are using compressor in a cycle. So what will be the indicated power or work? We will determine this also. Then what will be the compressor efficiency? It is very important parameter when we talk about the performance of the compressor. So that will be determined or understood in terms of the compressor efficiency. Then this is a very important, calculate the free air delivery rate. We already have discussed, this is the amount of air which compressor can supply at standard atmospheric condition.
what will be the free air delivery? It's called FAD. The total amount of the, or you can say the volume of air which compressor will receive at the inlet conditions. Okay, so that these are some of the highlights of the discussion I am going to have in the next classes. So wherever you have, we will, yes, I mean within the classes we will also perform solution of the different numericals based on the different fundamentals. Then you will understand more that how do we determine and how do we use compression process in a cycle, and how it is going to affect the cycle performance, how do we determine the compression work, and there are so many processes, so we will also determine the compression work for the different processes. Okay, so the basic fundamental which we already have seen so far is related to the reciprocating compression. That reciprocating compression we already have discussed and seen at various I mean for various operations. Even in drilling mud you have seen this, that we are using the positive displacement pumps which are either single acting or double acting. So I'm also showing you the one this cutting section of a compressor which is actually used for the usually for the compression of the air, and this has so many parts in it, and the whole are main parts are actually there is a chamber where compression will take place, and this is the piston which may be single acting or double acting. There are some other gauges, regulators, and some other units are also available which will be you actually provide additional safety of the compressor. So if you look at the design of the compression, they may be dual acting design. Okay, then there is single acting design also. Okay, so these two designs we already have seen, and there is one more thing very important. Some dual acting cylinders in high pressure applications will have a piston rod on both sides of the piston to provide equal surface area and balance loads. So that you must know that when we use compressor, particularly double acting, so this is the piston head, and there is one rod attached to the piston, so piston goes here or there. Okay, so now in double acting this surface is also available this side for compression, and this side is also available, but you see the area for compression actually reduces here because of the rod diameter. This diameter, this is the rod diameter, and the piston diameter is supposed D. So this side that much volume is available for the compression, but this side you relatively has low volume because of this rod. So that is what we usually do in dual compressors, determine the volume capacity. So that for that we have to use here pi by 4 d square into the swept volume, swept length, stroke length भी बोलते हैं उसको, and then इसमें आप you will reduce the dr. So in order to simplify this, some of the dual acting systems are now coming with the piston rods of same diameter. What happens, एक तो simplification हो जाता है और दोनों तरफ same volume available रहता है compression के लिए. Just to simplify, so some of the latest compressors are coming with this. So the area will become similar, but the volume for the compression will be similar on both sides of the piston. ठीक है, वो यहाँ पे भी लिखा है इसने कि जो some dual acting cylinders in high pressure applications they have piston rod on both sides. उससे क्या होता है एडवांटेज कि आपको कैलकुलेशंस में दिक्कत नहीं आती है और प्रोसेस सिंपल हो जाता है और दोनों तरफ सेम एरिया कंप्रेशन के लिए अवेलेबल रहता है. दीज डिजाइंस आर आल्सो अवेलेबल. तो इसलिए डबल एक्टिंग में एक तरफ पिस्टन मिल सकता है, रोड मिल सकता है, दोनों तरफ भी रोड मिलती है. ठीक है, ये भी ध्यान रखना. This is actually I just included to show you that this type of compressors we usually see in our lab, और आई थिंक आप लोगों ने भी यहाँ पे देखा होगा. तो ये वो कंप्रेसर है जो एयर के लिए यूज होता है, पर्टिकुलरली एयर के लिए है. तो जो इंडस्ट्रियल कंप्रेसर्स हैं वो नॉर्मली इंडस्ट्री में मिलते हैं या साइट पे मिलते हैं,
बट एक लैब में व्हेन यू सपोज बीटेक स्टूडेंट हो आप, यदि किसी लैब में जाओगे तो सबसे पहले आपको ये कंप्रेशर इस तरह का दिखेगा जरूर। तो दिस कंप्रेशर यूजुअली आप वहां पे भी देखते हो, जो जो रिपेयरिंग करते हैं टायर्स की, तो वहां पे भी ऐसे ही कंप्रेशर दिखते हैं आपको। एटलीस्ट फॉर नॉलेज पर्पस कि जो हम कंप्रेशर्स अपने रूटीन में देखते हैं और जो हमारे को ज्यादा दिखता है, उसके क्या क्या पार्ट्स हैं, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पार्ट्स इट डज है, और कैसा वो दोनों तरफ से दिखता है। दिस इज द फ्रंट फेस व्यू एंड दिस इज द बैक फेस व्यू। ठीक, तो ये तो उसका बैक है और ये उसका फ्रंट है। तो ये कंप्रेशर, ऐसा कंप्रेशर हमारे शायद लैब में भी होगा, यहाँ पे आरजेपीटी में। तो एटलीस्ट आपको पता रहना चाहिए उस कंप्रेशर पे क्या क्या लगा हुआ है। सो आई वुड रिक्वेस्ट दैट यू प्लीज सी द इमेज केयरफुली, और कहीं पे भी आपको कोई डाउट है ना वर्ड में या कोई नई चीज समझ में आ रहा है तो प्लीज लेट मी नो। इसमें एक्चुअली दो सिलेंडर हैं, फर्स्ट स्टेज सिलेंडर है और सेकेंड स्टेज सिलेंडर है। ठीक है, ये दोनों सिलेंडर है कंप्रेशन के लिए, ये ठीक है। फिर गेज दिए होते हैं रीडिंग के लिए, और इसमें जो टेम्परेचर है T2 T3, यहाँ पर इनलेट आप देख सकते हो। हाँ, मैनोमीटर रीडिंग भी है, तो मैनोमीटर इसके साइड में दिया होता है, यहाँ पे ये रहा, इसमें पीछे जहाँ पे एरो देख रहे हो आप। ठीक है, तो मैनोमीटर इज यूजली टू रीड द प्रेशर इन द कंप्रेसर, तो वो इसमें भी है। देन बहुत सारी चीजें, फिल्टर लगाया हुआ है टू रिड्यूस दी वाइब्रेशन और टू रिड्यूस दी एटमॉस्फेयर, इससे जो एयर पार्टिकल्स हैं जब एयर के साथ ना आए। अनलोडर वाल्व दिया हुआ है, एयर का कंप्रेशर यदि कंप्रेस एयर का प्रेशर बढ़ जाए तो देन यू कैन रिलीज दिस और यू कैन अनलोड दी कंप्रेशर। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू बहुत सारी चीजें लगी हुई हैं। कंट्रोल स्विच है, रिसीवर टैंक है, मोटर है, मैकेनिकल डायनोमीटर है। ठीक है, डायल वेट रीडिंग है टू अंडरस्टैंड हाउ मच वेट इज देयर इन टर्म्स ऑफ केजी। ठीक है, तो मैकेनिकल डायनोमीटर इसलिए लगा हुआ है कि जो मोटर रोटेट हो रहा है उसमें जो टॉर्क डेवलप हो रहा है दैट कैन बी मेजर फ्रॉम हियर। और देन इस मोटर पे जो टॉर्क आ रहा है, जो जो ये सप्लाई करेगा दैट विल बी गो टू कंप्रेशन। ये कंप्रेशन का यूनिट है, दैट इज मोटर, जिससे हमें पावर मिलने वाला है। तो बैक में जब देखोगे तो दिखेगा आपको। तो ये कंप्रेसर का आरपीएम है एंड दिस इज दी मोटर आरपीएम। तो मोटर रन करोगे तब जाके कंप्रेसर रन होगा। ठीक है, जब कंप्रेसर रन होगा तो एयर यहाँ से आएगी, यहाँ से डिलीवरी हो रही होगी। तो इस तरह से दोनों दोनों सिलेंडर साइमल्टेनियसली यूज होते हैं। तो अगली साइकिल में यहाँ से डिलीवरी होगी, यहाँ से सक्शन होगा। तो दैट इज द बैक व्यू ऑफ द कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर है ये, सबसे बेसिक कंप्रेसर है, लैब्स में जो अवेलेबल होता है सबके पास। तो इसको हमने बहुत जगह देखा भी है, इसलिए मैंने जस्ट इंक्लूड किया कि इस पे जो पार्ट्स है ना, एटलीस्ट आपको पता रहना चाहिए उनका क्या यूज है। इसलिए इमेज को केयरफुली देखो, और किसी भी उसमें आपको नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज लेट मी नो। कोई भी वर्ड ऐसा है जो नहीं समझ में आता है। दिस इज द फ्रंट फेस व्यू, दिस इज द बैक फेस व्यू। Yes, we have a question here from sir, what is crank case? देखो, मैं आपको इसका क्रॉस सेक्शन दिखाता हूँ। ये जो है ना, ये जो यहाँ पर आपको पिस्टन दिख रहा है, दिस इज अटैच टू दिस रोटर। एक्चुअली इसको लैंग्वेज को एक वर्ड आ रहा है क्रैंक। आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। क्रैंक जो है ना, आपके यहाँ पे कोर्स नहीं चलता है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कोर्स चलता है थ्योरी ऑफ मशीन्स। थ्योरी ऑफ मशीन्स बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है ये। इसमें जितने भी आप ये कनेक्शंस करते हो ना बिटवीन दी पार्ट्स, जैसे रोटर को अटैच किया, ठीक है, लाइक सपोज आपने कुछ वेन्स लगा रखे हैं, तो वेन्स जहां पे रोटेट हो रहा है वो किसी शाफ्ट से कनेक्ट हुआ, तो हम यहाँ पार्ट्स ना बोल के इसको क्रैंक बोलते हैं, लिंक्स बोलते हैं। क्रैंक, लिंक्स, मैकेनिकल कंपोनेंट जब इस तरह से असेंबली बनती है ना, तो थ्योरी ऑफ मशीन्स में इनको हम लिंक्स, जॉइंट्स, क्रैंक्स, तो ये पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है ना, ये केस, इसको हमने क्रैंक केस बोलते हैं, क्योंकि इसमें मोस्टली कनेक्शंस आप इसका कोई दूसरा मैं दिखाता हूँ आपको। हाँ, ये जो है ना, ये तो कंप्रेशर,
जहां पर मशीनिंग पार्ट्स जुड़ते हैं ना, ये वाला पोर्शन जो है, ये यहाँ पर आप देखो बहुत सारे कनेक्शंस यहाँ पर कनेक्ट होंगे, क्योंकि जो जो मोटर से टॉर्क डेवलप होगा दैट विल बी सप्लाइड टू दी पिस्टन्स, एंड दैट विल बी सप्लाइड थ्रू ए गियर, गियर असेंबली या किसी लिंक के थ्रू। तो ये जो पूरे जितने भी अरेंजमेंट है इसको हम क्रैंक अरेंजमेंट बोलते हैं, जिसपे नंबर ऑफ लिंक्स आर अटैच्ड ऑफ डिफरेंट फॉर ट्रांसफरिंग दी मोशन, लाइक टोर्क यहाँ से दूसरे उसमें सप्लाई होगा। तो जैसे मैंने आपको, आप जानते हो कि एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में जाने के लिए आपको लिंक्स चाहिए, मशीनिंग पार्ट्स चाहिए। तो वो मशीनिंग पार्ट्स जो है ना, उसको हमने जिसमें बंद किया हुआ है दैट इज कॉल्ड क्रैंक केस और कंप्रेसर, ये वाला। ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर जितने भी पार्ट्स हैं तो आपको आई थिंक लुब्रिकेशन भी दिखा होगा, ये रहा। और लुब्रिकेटिंग ऑयल इंडिकेटर जो स्प्लैश टाइप है, तो कंटिन्यूसली जहां पे फ्रिक्शन और लिंक्स, जितने ज्यादा मूवमेंट डेवलप होंगे ना, जितने ज्यादा लिंक क्रिएट होंगे उसमें मशीनिंग में, जहां पर सबसे ज्यादा फ्रिक्शन के चांसेस भी बनेंगे, उस जगह आपको लुब्रिकेशन भी चाहिए। तो इसके अंदर लुब्रिकेशन होने की वजह से इसको हमें बंद करके भी रखना पड़ता है, इसलिए इसको हम केस बोलते हैं। तो जब इसको आप ओपन खोलोगे तो यहाँ पे पिस्टन और शाफ्ट के थ्रू दी डिफरेंट गियर अरेंजमेंट ये सब जुड़े होंगे यहाँ पे। तो इसके लिए हमको क्रैंक बोलते हैं, लिंक्स को, मैकेनिकल पार्ट्स को। तो ये थ्योरी ऑफ मशीन में बहुत स्पेशल वर्ड है। ठीक है, एनीथिंग एल्स? ठीक है, तो ये कुछ पार्ट्स हैं जो कंप्रेशर के लिए यूज होते हैं, एंड दिस इज दी कंप्रेशन का मेन यूनिट ये है। ठीक है, तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें अवेलेबल रहती हैं। यस, अनदर क्वेश्चन है आमिर, डायनामोमीटर। यस, डायनामोमीटर इज यूज टू मेजर द टॉर्क। जैसे आपको यहाँ पर जो शाफ्ट जनरेट करके देगी ना, जब आप इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दोगे तो ये जो आपका मोटर है रन होगा। तो मोटर जनरली या तो पावर जनरेट के फॉर्म में या टॉर्क डेवलप करेगा, या लोड, जो भी आप फोर्स डेवलप कराओगे टू रन दी शाफ्ट ऑफ दी कंप्रेसर। तो जो इसकी जो आरपीएम रोटेट कराने के लिए मोटर पे जो भी टॉर्क डेवलप होगा दैट विल बी मेजर बाय द डायनोमीटर। मैकेनिकल डायनोमीटर यूज करते हैं, कुछ में आजकल ऑटोमेटिक भी आते हैं, तो इसलिए हम डायनोमीटर बोलते हैं उसको, जो टॉर्क मेजरमेंट के लिए काम आता है। एनीथिंग? ठीक है, तो ये जो सबसे बेसिक क्रॉस सेक्शन दिखता है ना कंप्रेसर पे, वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है। तो यहाँ पे आपको जब भी किसी कंप्रेसर को देखोगे तो ये मोस्टली तो आपको ऐसा ही दिखेगा, और जो अंदर है वो अरेंजमेंट आपको थोड़े कम दिखेंगे जब कंप्रेशन होता है, बट वो मैंने आपको क्रॉस सेक्शन फॉर्म में दिखाया है। सिलेंडर है और कुछ क्रैंक्स और लिंक्स जुड़े हुए हैं एट द सेंटर ऑफ द कंप्रेसर क्रैंक केस, तो वो सब अंदर है, और बाकी जिसके बाहर पार्ट्स हैं वो सारे मैंने आपको दिखा दिए। तो ऐसे आपको पता रहना चाहिए देख के कि कौन कंप्रेसर हम जो यूज कर रहे हैं, एटलीस्ट उसमें क्या क्या फंक्शन है, क्या क्या यूज हो रहा है, तो वो इसलिए सब इसमें लगा हुआ है। ठीक है, नाउ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर ही पहले देख लेते हैं। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर में आई टोल्ड यू सिंगल एक्टिंग, डबल एक्टिंग की डेफिनेशन आप ऑलरेडी जानते हो। सिंगल, दिस इज एक्चुअली सिंगल एक्टिंग कंप्रेसर। ठीक है, जिसमें एक साइड रोड अटैच है, दूसरी तरफ एरिया अवेलेबल है। तो ये तो ऑलरेडी हो चुका है, आई एम स्कीपिंग दिस। हाँ, कंप्रेसर का जो प्रोसेस है यूजुअली रेसिप्रोकेटिंग के लिए, दैट इज एक्चुअली प्रेजेंटेड इन ऑन ए पीटी, प्रेशर एंड डायग्राम। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमें जो भी पूरा कंप्रेशन प्रोसेस है उसको हम एक साइकिल के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कि जो थ्रू आउट जितना भी कंप्रेशन हो रहा है ना प्रोसेस में, दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन दी प्रेशर एंड वॉल्यूम साइकिल। तो वो भी आप थोड़ा बहुत जानते हो, बट मैं यहाँ पे भी ड्रॉ करूंगा। वेर एवर यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। तो सबसे पहले आप देखो जो प्रोसेस होता है,
सपोज आप यहाँ से चलते हो, दिस राइट नाउ द इनलेट वाल्व, इसमें सब गैस अटैच है, this cylinder is filled and the piston is at the extreme position पे है, it is fully available on the end, और end पे है बिल्कुल पिस्टन यहाँ पर, और इसमें गैस अभी फिल है बिकॉज इनलेट वाल्व यू सी इज ओपन। तो जो गैस अवेलेबल है अब हम इसको कंप्रेस करेंगे, व्हेन वी विल कंप्रेस इट बोथ द वाल्व्स विल क्लोज। तो व्हेन यू विल कंप्रेस इट, जब कंप्रेस करोगे both the valves will be closed and the gas will be compressed। जैसे ही कंप्रेशन चालू होगा आप देखिए प्रेशर बढ़ेगा, so that is actually the compression process, because compression cannot be performed at constant, so the process has to be other than this, because this is isotonic compression। तो क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे नहीं हो सकता है आपकी, तो इसलिए किसी दूसरे प्रोसेस पे ही होगा। तो यूजुअली इसको हम आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, पॉलीट्रोपिक कंप्रेशन इन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो कंप्रेशन यूजुअली आइसोथर्मल, आइसेंट्रोपिक होता है, तो आइसोचारिक हो नहीं सकता क्योंकि प्रेशर तो ऐसे भी बढ़ता है। ठीक है, तो इसलिए 1 to 2 कैन बी कंसीडर्ड एज ए कंप्रेशन प्रोसेस। तो जब कंप्रेशन हो जाता है, सिलेंडर विल बी एट दिस पोजीशन, देन यस, अब आप जब कंप्रेशन कर दोगे तो आउटलेट से जो वाल्व है डिस्चार्ज के लिए, इट विल ओपन एंड द गैस विल गो आउट, जो हमें यूज में आती है। ठीक है, जिसको हम अपने पर्पस के लिए यूज करते हैं। तो ये एनर्जी यहाँ से सप्लाई होती है ड्यूरिंग डिस्चार्ज स्ट्रोक। तो जो पूरा प्रोसेस है उसमें जब आप डिस्चार्ज करोगे द वॉल्यूम विल अगेन रिड्यूस, क्योंकि जो कंप्रेस्ड एयर थी इट विल कम आउट एंड द पिस्टन विल फर्दर मूव। तो जो वॉल्यूम है इट विल अगेन रिड्यूस from here to here, and this occurs at the constant pressure। तो इसलिए इसको आइसोबारिक प्रोसेस भी बोलते हैं। तो 2 to 3 is actually the isobaric discharge and 1 to 2 is any process। ठीक है, तो इसमें प्रेशर बढ़ता है तो इसलिए इसमें प्रेशर बढ़ेगा और इसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है। दैट इज द सेकंड स्ट्रोक, इसको डिस्चार्ज स्ट्रोक बोलते हैं। थर्ड में आपके पास अब जब यहाँ पे गैस ही नहीं बचेगा, तो देन यू विल स्टार्ट द एक्सपेंशन स्ट्रोक। एक्सपेंशन में पिस्टन विल मूव इन दिस डायरेक्शन अगेन, उसकी वजह से यहाँ पे प्रेशर रिड्यूस होगा। तो प्रेशर रिड्यूस हो गया 3 to 4 में। ठीक है, और वॉल्यूम कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो नहीं सकता है, तो इसको 3 to 4 में ऐसे दिखाते हैं। ठीक है, तो ये 3 to 4 कांस्टेंट हुआ। अब आपके पास जो वॉल्यूम है इट इज एक्चुअली रीच टू V4। तो सपोज पिस्टन यहाँ पे आ गया, ठीक है, अब तक इनलेट वाल्व नहीं खुलेगा। when the piston will be here, inlet valve will remain closed। so once you keep on reducing the volume, sorry, at constant pressure पे, फिर आप वॉल्यूम बढ़ाना चालू कर दो। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ने लगेगा, पिस्टन का इनलेट वाल्व, सॉरी, सिलेंडर का इनलेट वाल्व खुल गया तो गैस अंदर आने लगेगी। तो ऐसे पूरी साइकिल कंप्लीट होती है 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1। इसमें 4 to 1 एंड 2 to 3 प्रोसेस हैं, दोनों आइसोबारिक। ठीक है, अब इस साइकिल में जो कंप्रेशन की साइकिल है ना, यू विल सी सो मेनी पॉइंट्स। दिस इज द इनलेट पॉइंट, दिस इज द कंप्रेशन जहां पे होता है सेकंड पॉइंट। यूजुअली फ्रॉम द डायग्राम इटसेल्फ आई कैन से P2 इज इक्वल टू P3 होगा। ठीक है, बिकॉज इज आइसोबारिक प्रोसेस एंड दिस 3 to 4 इज एक्चुअली दी, इट्स नॉट आइसोबारिक, इट्स अनदर प्रोसेस। तो इसमें यहाँ पे P3 P4 डिफरेंट होंगे। एंड इनलेट पे जो स्ट्रोक है जिसको हम सक्शन स्ट्रोक बोलते हैं, इसमें फिर से P1, P4 एंड P1 विल बी इक्वल। तो P4 एंड P1 विल बी, तो कुछ कुछ तो आप डायग्राम से देख के बता दोगे कि व्हाट विल हैपन। ठीक है, नाउ फॉर द कंप्लीट साइकिल देयर आर 4 पॉइंट्स, 4 डिफरेंट पॉइंट्स 1 2 3 4, जहां पर टेम्परेचर प्रेशर बदल सकते हैं। तो somebody may ask you what will be the pressure and temperature at any point। so these things will be determined when we will further solve some numericals। तो वो हम निकाल सकते हैं किसी भी कंप्रेशन प्रोसेस से। तो अभी जैसे इसमें आइसोबारिक लगा है तो वी नो दिस कि आप कौन सा अप्लाई करेंगे। लाइक आपको आइसोथर्मल पता है तो टेम्परेचर विल रिमेन कांस्टेंट। तो गैस लो की जो इक्वेशन है ना, PV is equal to MRT, that will be entirely used here also। ठीक है,
इफ आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर विल बिकम कांस्टेंट, आइसोबारिक है तो प्रेशर विल रिमेन कांस्टेंट। तो इस तरह से हम किसी भी, क्योंकि आइसोबारिक है तो P2 P3 तो पता चल ही गया, एंड V2 V3 हम निकाल सकते, सॉरी V2 V3 निकाल सकते हैं, T2 T3 निकाल सकते हैं। और सिमिलरली जैसे आपके पास यहाँ पे कंप्रेशन प्रोसेस है, सपोज वो PV रेज टू द पावर n होगा या फिर PV रेज टू द पावर गामा होगा, तो हम इनसे किसी भी पॉइंट पे लाइक P2 V2 निकाल सकते हैं। तो वो सब हम एनालिसिस करेंगे, एंड आफ्टर डिटरमाइनिंग P2 P3 P4 we can determine the area of this graph or this cycle. तो जो एरिया आपको दिख रहा है that is the area covered by the compression cycle. जो एक साइकिल हुआ उसने कितना एरिया कवर किया, now I can determine this. क्यों? क्योंकि I know W is equal to P. अब ये है कि आपको कौन सा प्रोसेस है, तो अकॉर्डिंगली आपके पास लिमिट्स अवेलेबल होंगे। लाइक मेरे पास इफ आई एम हैविंग दी like suppose compression process है PV raised to the power n, PV raised to the power n is equal to constant, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंगली आप इसमें जो भी अप्लाई है रिप्लेस कर सकते हो, वॉल्यूम को रिप्लेस कर सकते हो, प्रेशर रिप्लेस कर सकते हो, और आपके पास सपोज 1 to 2 जा रहे हो तो यूनिट ले सकते हो। तो ऐसे हम किसी भी प्रोसेस के बीच में वर्क डन निकाल सकते हैं। ठीक है, 1 to 2 में निकाल सकते हैं, 2 to 3 में निकाल सकते हैं, देन 3 to 4 में जो जाएगा वो निकाल सकते हैं, 4 to 2 में भी निकाल सकते हैं, एंड देन सबको जोड़ेंगे, कहीं पे नेगेटिव होगा कहीं पे पॉजिटिव होगा, देन टोटल जो वर्क आउटपुट आएगा दैट विल रिप्रेजेंट दिस एरिया। ठीक है, तो जो कंप्रेशन करते हैं हम लोग, यू शुड अंडरस्टैंड कि व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दिस, क्योंकि जो कंप्रेशन हो रहा है that has constituted that much area. Now I am asking, you can also understand, if I can reduce this area somehow, यदि इतना कर लेते हैं तो that much area I can save. that much area मतलब ये जो आपको कंप्रेशन में प्रोसेस में जो वर्क देना पड़ता है जो कंप्रेशन में, और वो कहां से मिलता है, इट्स ए फ्यूल एक्चुअली। वो फ्यूल जो है आपके पास दैट कैन बी सेव्ड फॉर दैट मच एरिया। तो ये सब एनालिसिस हमें कंप्रेशन में देखना है, और मे बी दैट इफ योर कंप्रेशन प्रोसेस इज नॉट गुड इट मे लाइक दिस आल्सो। तो इफ कंप्रेशन प्रोसेस चेंजेस तो ये एरिया बढ़ भी सकता है। ठीक है, तो अर्लियर इट वाज लाइक दिस, एंड द ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस दिस कंप्रेशन प्रोसेस एज मच एज पॉसिबल, बिकॉज मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो ये होगा। तो जो कंप्रेशन में वर्क है, इफ यू कैन रिड्यूस दिस, तो टोटल जो नेट आउटपुट है वर्क का, नेट आउटपुट W नेट, इट कैन बी इंक्रीज्ड। ठीक है, तो कंप्रेशन प्रोसेस को ऑप्टिमम करना, उसको ऑप्टिमाइज करके जितना ज्यादा घटा सकते हो, जितना कम से कम कंप्रेशन वर्क लगेगा उतना ही एफिशिएंसी प्रोसेस की बढ़ेगी, क्योंकि आपके पास फ्यूल सेव होगा, और फ्यूल सेव होगा तो आपके पास ऑफ कोर्स एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो इसलिए ये सब मैं बता रहा हूं कि आपको डिफरेंट स्टेजेस पे, डिफरेंट पॉइंट्स पे प्रेशर टेम्परेचर निकालने पड़ सकते हैं, देन बेस्ड ऑन दिस यू कैन आल्सो डिटरमाइन व्हाट विल बी द वर्क डन। ठीक है, अब जैसे इसमें मैंने आपको दिखाया कि जो वर्क डन हुआ, एंड वर्क डन ऑन द सिस्टम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम, ये हम सब निकालेंगे, एंड देन टोटल नेट वर्क देखेंगे कि कितना मिलता है। वी कैन से कि दैट कंप्रेशन इज ए गुड कंप्रेशर, और कंप्रेशन एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, बहुत कंप्रेशन कम से कम लगाना पड़ रहा है, और हम ये सब आगे चल के सेव भी करेंगे। सेव करने का एक ही तरीका है, इफ यू कैन रिड्यूस दिस एरिया, जितना भी हो सके उसको कम से कम करिए, और सपोज यहां से निकल जाते हैं तो ये एरिया बच जाएगा। तो अब मेरे पास जो कंप्रेशन का वर्क लगा, दैट इज द एरिया अवेलेबल फॉर द कंप्रेशन। So that is the objective of this study. Whatsoever we do in the natural gas engineering, natural gas processing, compression, तो ऐसा नहीं कि जब आप कंप्रेस करते तो बहुत फ्यूल कंज्यूम होता है। If you can save it, if you can improve the compression efficiency, that will be like very helpful, और वो कैपिटल बर्डन भी कम करेगी, फ्यूल की सेविंग भी करेगी,
तो वो सब स्टडी हम इसमें समझेंगे कि कितना वर्क आउटपुट आता है, कितना वर्क डन निकाल सकते हैं, कैसे निकालते हैं, और व्हाट आर द डिफरेंट इफेक्ट्स। जैसे इफेक्ट्स में ये है, आपके पास एक वर्ड आ रहा है यहाँ पे, इफ आई डोंट नो आपको पता है या नहीं, बट लेट मी टेल यू। एक आ रहा है वर्ड क्लियरेंस वॉल्यूम, ठीक है। तो क्लियरेंस वॉल्यूम आई डोंट नो आपको जानते हैं नहीं, बट हम जब भी क्लियरेंस वॉल्यूम की बात करेंगे तो ध्यान रखना कि पिस्टन कभी भी टॉप पे नहीं टकराता है। मैंने शायद पहले बताया है ये जो वॉल्यूम रिमेनिंग रहता है ना, दैट इज कॉल्ड क्लियरेंस वॉल्यूम। तो इसका इफेक्ट भी हम देखेंगे कि इफ यू आर हैविंग सो मच क्लियरेंस वॉल्यूम, so how it is going to affect the compression efficiency of the natural gas if I am not having the suppose clearance volume। हाँ ठीक है, यस आमिर सेड यस सर, हाँ तो वो ठीक है बताया था। तो यहाँ पे अभी भी कोई डाउट है कंप्रेशन प्रोसेस में, प्लीज लेट मी नो। ये आपकी कंप्रेशन साइकिल है 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 1। तो मैंने बस वही निकालना है। जैसे अभी आपको मैं एक चीज बताता हूँ, इफ लेट मी स्टार्ट वन बाय वन। हाँ, इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, तो इसमें आप देखोगे जो 1 to 2 एंड 2 to 3 में जो वर्क कवर होता है ना, एरिया अंडर द कर्व, दैट इज द एरिया। इतना सारा एरिया कवर होता है, ठीक है। बट जब आप साइकिल पूरी कर लेते हो 4 to 1, तो एरिया ये कवर होता है, क्योंकि साइकिल पूरी हो गई। तो जो 1 to 2, 2 to 3 में था, वही मैंने जस्ट एरिया ही कवर कर रहा हूं थ्रू आउट द ग्राफ। तो ये जो एरिया था ना वो निकल गया, क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस तरह से जाना है, तो ये पूरा साइकिल का जो एरिया है ना वो इसमें से रिमूव हो जाएगा, वरना रेप्लिकेट होगा। वही मैंने देखा है कि ये एरिया कवर करती है पूरी साइकिल, और इस एरिया को जितना ऑप्टिमाइज कर सकते हैं उतनी अच्छी बात। अब इसी पे एनालिसिस चालू होगी, और कंप्रेशन को कैसे डिटरमाइन करेंगे, कंप्रेशन पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी होंगे। तो आपको मैंने कुछ थोड़े तो बताए हैं, जैसे आइसोबारिक मैंने दिखाया आपको प्रोसेस, आइसोबारिक है दिस वन, चारिक भी हो सकते हैं कहीं कहीं पे, दैट विल बी लाइक कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। ये कांस्टेंट प्रेशर पे है तो आइसोबारिक बोल दिया मैंने। ये कुछ भी नहीं है, ना ये आइसोबारिक है ना आइसोचारिक है, दैट मे बी पॉलीट्रोपिक और आइसेंट्रोपिक हो सकता है, एडियाबेटिक प्रोसेस हो सकते हैं। तो वो सारे प्रोसेस के बारे में हमें धीरे धीरे पता चलेगा, एंड देन अकॉर्डिंगली वी विल डिटरमाइन दी कंप्रेशन लोड और कंप्रेशन एफिशिएंसी। सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Okay, let me discuss this first, because you all know this, I think. Isothermal compression means the temperature remains constant, and it is defined by this equation, PV is equal to constant, as I said you, PV is equal to MRT, T is constant, तो सब कुछ constant right side में, so that is called compression, isothermal compression। तो जैसे गैस कंप्रेशन जो हम नेचुरल गैस में देखेंगे, that can be categorized in isothermal compression। आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन को हम एडियाबेटिक रिवर्सिबल भी बोलते हैं। Adiabatic reversible मतलब there is no heat exchange with the surrounding and that process can be reversible also। ये जहां से गया उल्टा भी आ सकता है, और during this there is no heat exchange, तो इसको हम आइसेंट्रोपिक बोलते हैं। इसमें एंट्रोपी कांस्टेंट रहती है, ये भी बोल सकते हो, और एडियाबेटिक भी बोलते हैं। और आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं PV इज इक्वल टू PV रेज़ टू द पावर गामा इज इक्वल टू C। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, आइसोथर्मल को PV इज इक्वल टू C। तो मैं बेसिक जस्ट बता रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक आपने थर्मोडायनामिक्स में सब देखा होगा ये। एंड देन पॉलीट्रोपिक आता है विच इज स्लाइटली रियल प्रोसेस, तो उसमें PV रेज टू द पावर N या PV रेज टू द पावर K, तो ये थोड़ा सा रियल प्रोसेस हो जाता है, तो इसलिए इसको हम पॉलीट्रोपिक बोलते हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ वो कैसे हमें दिखते हैं, ठीक है। तो ये सब आपको पता ही है, नहीं है समझ में आए तो बोलना। दिस इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन, वेयर जो आइसेंट्रोपिक एक्सपोनेंट है दैट इज एक्चुअली डिफाइंड बाय Cp by Cv, ठीक है। दीज आर द हीट कैपेसिटीज एट कांस्टेंट प्रेशर एंड वॉल्यूम, और Cv इज इक्वल टू Cp माइनस Cp, या ये भी बोल दीजिए आप, Cp इज इक्वल टू प्लस R, ठीक है। तो R आपके पास कांस्टेंट है, गैस कांस्टेंट। तो ये सब आई थिंक आपको पता होगा, नहीं है तो प्लीज पूछते रहिए। पॉलीट्रोपिक कंप्रेशन थोड़ा रियल प्रोसेस होता है, तो उसको हम PV रेज़ टू द पावर N से बोलते हैं, तो इंस्टेड K वी विल यूज N, ठीक है।
ठीक है. So now let me discuss this for every one of you. That is very important diagram. So characteristic of the compression process. ये सब नोट फॉर्म में आपको मैं भेज दूंगा, नोट में भी है ये. तो आपके पास जो मैंने कंप्रेशन प्रोसेस दिखाया था, so earlier it was A to D. A to D देखिए कौन सा प्रोसेस है. A to D is actually isothermal compression. Isothermal means the temperature will remain constant, which looks like hypothetical दिखता है, क्योंकि कंप्रेशन होने पे टेम्परेचर ना बढ़े, ये बहुत डाइजेस्ट नहीं होता है, इसलिए इट्स वेरी हाइपोथेटिकल प्रोसेस. और आप जस्ट देखिए यहाँ पे, दिस इज दी ए टू डी. एंड सिमिलरली जो ए टू डी के साथ कंप्रेशन पूरा होगा, दैट विल कंसिस्ट ऑफ दिस साइकिल. ठीक है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट दी adiabatic process which is isentropic process, so A to B जो है that is isentropic process. A to B के साथ जो साइकिल कंप्लीट होगी वो यहां से चलेगी, और A to B की वजह से that much area will increase if you have isentropic. तो ये एरिया कुछ बढ़ जाएगा. तो ये थोड़ा सा रियल प्रोसेस है फिर भी, बट आइसोथर्मल लुक्स लाइक वेरी हाइपोथेटिकल है, which is usually not possible. when you compress टेम्परेचर तो बढ़ता ही है. तो अब आपके पास क्या था ऑप्शन की, इफ यू कैन मेक दिस प्रोसेस विच इज, अच्छा उसमें भी क्या है, एडियाबेटिक है या आइसेंट्रोपिक को, इफ यू डू सम कूलिंग ड्यूरिंग द कंप्रेशन, इफ यू डू सम कूलिंग, ये भी आएगा विच वी कॉल इंटरकूलिंग. सो दैट विल आल्सो बी डिस्कस्ड. सो इफ यू डू सम कूलिंग दैट तो हो जाएगा ए टू सी, और उसकी वजह से थोड़ा सा एरिया और सेव हो जाएगा, दैट मच एरिया. तो कंप्रेशन पे लोड और कम पड़ेगा. ठीक है. बट इफ you don't perform any cooling during the process and there are so frictions तो होंगे, जिसकी वजह से एरिया थोड़ा सा और बढ़ गया. नाउ द प्रोसेस विल बिकम AC डैश, और एरिया और बढ़ गया. So now you can see from this diagram there are four cycles, different cycles, and look at the cycle area, the area consumed by the cycle for each process. Look at the area. So A, D, E, F consist of very less area. इसके लिए सबसे कम कंप्रेशन लगेगा as the cycle says. ठीक है. But if we perform adiabatic, so in adiabatic it will consist of slightly higher compression, क्योंकि एरिया ज्यादा कंज्यूम होगा, ये वाला भी ऐड हो जाएगा. बट यदि आप आइसेंट्रोपिक में, सॉरी आइसोथर्मल है और फिर एडियाबेटिक है A to B, बट जो रियल प्रोसेस है पॉलीट्रोपिक को थोड़ा सा ठंडा कर दीजिए तो वो रियल प्रोसेस हो जाएगा. और यदि इफ यू डोंट परफॉर्म कूलिंग तो देन पॉइंट विल बी शिफ्टेड हियर. So this AC-EFA will consist of larger area than each process. तो इसमें जो compression efficiency होगी that will be minimal, क्योंकि larger area होगा तो net work आपके पास less आएगा. ठीक है. WT minus WC, जितना ज्यादा compression work बढ़ेगा उतना ही efficiency डाउन होती चली जाएगी. क्यों? W net एफिशिएंसी ऐसे बताते हैं, W net अपॉन Q1. तो जो आउटपुट आ रहा है और जो इनपुट है दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो आपको एफिशिएंसी मिलती है. तो इसको बढ़ाने के दो ही तरीके हैं, इधर यू रिड्यूस Q1 और यू इंक्रीज W net. तो आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ टू इंक्रीज द W net. उसका एक ही तरीका है, कंप्रेशन का वर्क जितना कम कर सकते हो, जितना लोड कम से कम रखोगे उतना ही अच्छा रहेगा. तो ये सब हम आगे भी पढ़ेंगे, दैट हाउ टू improve the compression efficiency by reducing WC. But here it is clear, if you can perform isothermal, the compression load will be minimal and the efficiency will be higher. But isothermal I again said कि it's very difficult to achieve. Then तो real process कौन कौन से बनते हैं, AC and AC dash. AC dash में सबसे ज्यादा एरिया कंज्यूम होगा, so it will consist of larger compression वर्क और मिनिमल एफिशिएंसी अचीव होगी आपको. बट यदि आप थोड़ा सा कूलिंग कर लो, तो एक वर्ड मैं यहाँ पे इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, कूलिंग. सो विद इन द कंप्रेशन इफ यू कैन परफॉर्म स्लाइटली कूलिंग, तो कूल करने से थोड़ा एडवांटेज मिलेगा और एरिया जो कंप्रेशन का है दैट वी कैन बी स्लाइटली रिड्यूस्ड.
ठीक है, बट आप चाहे कितना भी कूलिंग कर रहे हो, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अचीव दिस ग्राफ। दिस इज आइडियल ग्राफ और बहुत हाइपोथेटिकल है ये। तो जितना ज्यादा इस ग्राफ को आप इधर शिफ्ट कर सकते हो इस तरफ, उतना ही एडवांटेज रहेगा और उतना ही अच्छा आपको वर्क आउटपुट मिलेगा, उतनी ही ज्यादा कंप्रेशन एफिशिएंसी हमें मिलती है। एम आई क्लियर? तो कहीं पे भी कोई डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। और जो मैंने आपको स्लाइड्स दिखाए हैं उसमें किसी में भी कुछ चीज समझ में नहीं आया है तो प्लीज बता देना। मैंने 3 कंप्रेशन प्रोसेस बताए हैं। थर्मल है आपके पास, पॉलीट्रॉपिक है, आइसेंट्रोपिक है। ठीक है। सिमिलरली फॉर द रियल प्रोसेसेस, इफ आई वांट टू नो कि आपके पास, जैसे आपके पास पीवी रेज टू द पावर गामा है, मैं से लिख सकता हूँ P1 V1 रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू P2 V2 रेज टू द पावर गामा। नाउ बाय द गैस लॉ आप किसी को भी रिप्लेस कर सकते हो और इसमें से आप अब वैल्यू निकाल सकते हो। तो मैंने इसी को यूज करा और मैंने V को रिप्लेस कर दिया। तो मैंने एक नया रिलेशन डेवलप किया है T2 में, T और प्रेशर में। सिमिलरली नीचे भी है, वो है आपके लिए K के लिए, मतलब ये आइसेंट्रोपिक के लिए है और जो अपर है वो पॉलीट्रॉपिक के लिए। खाली K और N में फर्क है बस। तो बट आप ये एक्सप्रेशन यूज करके, इफ यू सपोज want to perform the determination of T2, what is will be T2 and T1 मेरे को पता है, तो मेरे को यदि P2 भी मिल जाए तो आई कैन डिटरमाइन T2। तो P2 पता है तो मैं यहाँ से T2 निकाल सकता हूँ। तो ऐसे जो भी प्रोसेस आप करोगे, जो भी प्रोसेस करोगे उसके लिए रेलेवेंट इक्वेशंस यूज होंगी एंड देन हम अकॉर्डिंगली वैल्यू निकाल सकते हैं किसी भी प्रेशर और टेम्परेचर की किसी भी प्रोसेस के बाद। ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे आप देख लीजिए, दिस इज तो P2 by P1, इफ यस P2 by P1 को हम कंप्रेशन रेशियो भी बोल सकते हैं, दैट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय R। ठीक है। तो इफ R इज गिवन, तो सबसे पहले तो आपको हो सकता है कि शायद R दिया हो, तो ध्यान रखना जब R दिया होगा तो देख लेना कौन से प्रेशर के बीच में लग रहा है। तो P2 by P1 मिल गया, तो यहां से मैं P2 निकाल सकता हूं बिकॉज इनलेट कंडीशंस विल बी नॉर्मली गिवन टू मी। तो P2 निकल गया, बाय अप्लाइंग दिस P2 इन दिस इक्वेशन आई कैन डिटरमाइन T2। तो जब मुझे T2 भी मिल गया, P2 भी मिल गया, ठीक है, तो यही उसने पूछा था कि कंप्रेशन के बाद कितना प्रेशर और टेम्परेचर आपको मिलेगा। तो अब वो पूछ रहा है कि कंप्रेशन वर्क निकालो, तो वो भी मैं ऐसे निकाल सकता हूँ। दैट विल बी आल्सो शोन टू यू इन नेक्स्ट स्लाइड्स कि हाउ डू वी डिटरमाइन दी नाउ कंप्रेशन प्रोसेस, सॉरी कंप्रेशन वर्क। ठीक है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो साइकिल की बात मैं कर रहा था वही साइकिल फिर से यहाँ पे ड्रॉ भी हुई है। फर्स्ट लुक एट दिस साइकिल केयरफुली। उसमें सारे जो कंप्रेशन प्रोसेसेस हैं सबको एक्सप्लेन किया गया है, सबकी इक्वेशन लिखी गई है रेलेवेंट। दिस इज आइसोथर्मल, दैट इज एडियाबैटिक, दैट इज पॉलीट्रोपिक। ठीक है, वही यहाँ पे लिखा है। तो अब इसमें क्या है, व्हाट वी आर डूइंग, तो जो कंप्रेशन हुआ है विद इन द सिलेंडर, इट्स रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशन असेंबली। तो रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशन में जो साइकिल मुझे अचीव हुई है दैट इज एक्चुअली A P and then it goes to C and then D. It means it doesn't have any clearance volume because I also have written this specifically, compression without clearance volume, because आपने टॉप पे कोई वॉल्यूम नहीं छोड़ा, आपने पिस्टन को ना मैक्सिमम हेड पे टच कर दिया जिसकी वजह से द वॉल्यूम बिकम जीरो व्हेन इट डिस्चार्जेस द गैस आउटसाइड। जब ये डिस्चार्ज करेगा तो ये यहां तक पहुंच गया, इट मींस इट इज एट द टॉप पोजीशन एंड देयर इज नो क्लियरेंस वॉल्यूम। तो जो कंप्रेशन का साइकिल होगा वो ऐसे कंप्लीट होगा। ठीक है। यस, तो तीन पाथ में हुआ, D2A, A2B एंड B2C। ये इनलेट है, सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेशन एंड देन डिस्चार्ज। ठीक है, यहाँ पर कोई क्लियरेंस वॉल्यूम नहीं है,
the piston touches the top of the head को टच करता है। उस केस में अब नाउ यू कैन सी द वर्क डन यदि मुझे निकालना है दिस साइकिल के लिए, तो आई वुड लाइक टू डिटरमाइन द एरिया ऑफ दिस कर्व ग्राफ जो कंसिस्ट करता है, तो वही मैंने यहाँ लिखा भी है। तो जो इंडिकेटेड वर्क बोल दीजिए, इंडिकेटेड पावर भी आगे चल के बोलेंगे। तो इंडिकेटेड पावर क्या है, नेट वर्क डन बोल सकते हैं इंडिकेटेड पावर को, वर्क को। तो नेट और इंडिकेटेड वर्क डन ऑन द एयर साइकिल, उसके लिए निकाल रहे हैं हम लोग। तो आप चाहे गैस यूज करेंगे तब भी यही फंडामेंटल अप्लाई होंगे, खाली उनके प्रॉपर्टीज बदल जाएंगे। तो मैंने क्या किया, एरिया 1 2 3 4 1 होगा पूरा, 1 2 3 3 4 1, दैट इज द एरिया कंज्यूम्ड बाय द कंप्रेशन साइकिल। तो मुझे इसका एरिया चाहिए, तो मैंने क्या किया, एरिया अंडर 1 to 2, एरिया अंडर 2 to 3 एंड 2 to 3, 3 to 4 में तो 0 ही आएगा। एरिया अंडर 4 to 1, तो 4 to 1 का जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि ये रिपीट होगा, क्योंकि ये जो एरिया है ना वो पहले ऐड हो चुका है 1 to 2 एंड 2 to 3 में। तो इसमें क्या होता है कि इसमें आप उल्टा जा रहे हो, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसमें एरिया माइनस हो जाएगा। तो वो ये एरिया आपको निकालना है। तो इसके लिए जो एक्सप्रेशन बनता है दैट इज दिस एक्सप्रेशन। जो मेरे पास ये वाला एरिया अंडर 1 to 2 कैसे निकाल सकते हो, एरिया अंडर 1 to 2, दैट इज दिस कंप्रेशन प्रोसेस है। और वो कौन सा प्रोसेस है, एडियाबेटिक है। सपोज मैं एडियाबेटिक ले लेता हूँ, पीवी रेज टू द पावर गामा इज इक्वल टू सी। तो जो उसका वर्क डन आ रहा है दैट विल बी दिस। इसको मैं दिखा दूंगा अभी, हाउ डू वी डिटरमाइन दिस। देन 2 to 3 में क्या है, P2V2। सो 2 to 3 कहाँ पे है, P2V2। तो P कांस्टेंट है और खाली वॉल्यूम ही है जो चेंज हो रहा है V2 से 0। तो ये सिंपल हो गया, वरना वैसे क्या होना चाहिए, P2, क्योंकि P डेल्टा V होता है ना, P2V2 माइनस 0, तो वो यही आएगा P2V2, बिकॉज देर इज नो क्लियरेंस वॉल्यूम। इफ क्लियरेंस वॉल्यूम इज देयर इट विल बी P2V2 माइनस VC। ठीक है। सिमिलरली एरिया अंडर 4 to 1 क्या होगा, P1V1। क्यों, क्योंकि जो शुरू में वॉल्यूम है दैट इज 0, दैट विल बी P1V1, बट दैट हैज टू बी रिड्यूस्ड। तो वो मैंने इसे किया। तो ये दोनों तो आपको क्लियर हो रहे होंगे, क्योंकि ये दोनों आइसोबारिक प्रोसेस हैं। ठीक है, बट ये जो ऊपर है उसको मैंने देखो यहाँ पे डिटरमाइन किया आपके लिए। तो इसको मैंने ऐसे निकाला, क्योंकि ये आपके पास कंप्रेशन प्रोसेस है, तो मैंने लिमिट से निकाल दिया। और जब आप इसको पीडीवी से निकालोगे, वर्क को पीडीवी बोलते हैं, तो इसको आप रिप्लेस कर दीजिए पी को वी के फॉर्म में, और ऐसे करने के बाद दिस विल बी लाइक दिस। और अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये गायब हो जाएंगे बी वाले टर्म, और मेरे पास ये बचेगा P2V2 माइनस P1V1 अपॉन n-1। तो जहां पे भी आपको n और k मिलेगा, यू कैन इमीडिएटली अंडरस्टैंड दिस इज एक्चुअली द कंप्रेशन प्रोसेस। और कंप्रेशन प्रोसेस में ये या तो पॉलीट्रॉपिक होगा या फिर आपके पास एडियाबेटिक होगा। तो n और k से भी पता चल जाएगा दिस इज आइसेंट्रोपिक है या पॉलीट्रॉपिक। ठीक है, नाउ कोई डाउट प्लीज लेट मी नो। जहां पे भी कोई चीज समझ में नहीं आया प्लीज इमीडिएटली लेट मी नो, बिकॉज दीज आर वेरी बेसिक फंडामेंटल्स फॉर द कंप्रेशन। और उसके बाद मैंने इसी इक्वेशन को जब सॉल्व किया, दिस विल लुक लाइक दिस। नाउ दिस कैन आल्सो बी रिटन एज इन दिस फॉर्म, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो ये फाइनली मेरे पास इंडिकेटेड वर्क है, विच इज यू कैन से नेट वर्क, जो मुझे साइकिल से मिला वही मुझे निकालना था, वही मैंने निकाल लिया। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो जो मैंने कंप्रेशन की बात कर रहा था ना, तो दैट इज द कंप्रेशन वर्क WC। ये जितना कम होगा उतना ही एफिशिएंसी ज्यादा होगी, तो वही मैंने यहाँ पे निकाला है। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ पे भी रोक रहा हूँ आज, बट इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो नाउ। So today I will stop here. We have three more minutes. So if you have any doubt, please discuss. So today we have discussed very important thing that how do we जो मैंने ऑब्जेक्टिव आपको बताए थे शुरू में स्लाइड में, so these I am actually discussing in steps. तो आपको आज कंप्रेशन का आइडिया हुआ होगा। देन कंप्रेशन के लिए कैसे कैसे किसी स्टेज पे हम डिफरेंट प्रॉपर्टीज निकालेंगे, दैट विल बी
also seen later also, but I have shown you some basic compression processes. And compression process के अलावा how do we determine the net work for a compression cycle if it is completed by the like polytropic है, isobaric है. तो एक साइकिल का एग्जांपल भी मैंने आपको दिखाया और फिर मैंने पूरा वर्क डन उससे निकाला. इसमें कहीं पे भी कोई डाउट है, कुछ चीज समझ में नहीं आया हो, और कंप्रेशर का भी बेसिक यूनिट जो हमें लैब्स में मिलता है उसका भी डायग्राम मैंने आपको आज दिखाया था, उसके पार्ट्स भी मैंने आपको बताए सब. So if you have any doubt, anything to discuss or share, please discuss. कोई डाउट नहीं है? So then we'll meet tomorrow and I will start again from here. तो फिर और बेसिक फंडामेंटल्स जो हैं, कल कुछ न्यूमेरिकल भी शायद मैं सॉल्व कराऊंगा आपको. सो प्लीज कीप योर कैलकुलेटर ड्यूरिंग द क्लास विद यू. वो भी सब डिस्कस कल करेंगे. ठीक है, देन बाय एवरीवन.